Hello everyone, a very good morning to all. So in this video, we're starting with the Latimer diagrams. But before that, let me give you a brief overview of the what diagrammatic representation of potential data is and why do we need diagrammatic representation of potential data. Now, by potential data, we mean that we have electrode potential values of the same species with different oxidation states or with different oxidation numbers. So what diagrammatic data helps us, diagrammatic representation of potential data helps us to understand the relative oxidizing or reducing abilities of couples present in same diagram. सेम डायग्राम के अंदर जब एक ही स्पीशीज की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर वो प्रेजेंट है तो वहां पे हम उसकी relative oxidizing और reducing abilities को compare कर सकते हैं. तो इस तरह से diagrammatic representation is helping us to understand the relative oxidizing and reducing abilities of couples present in the same diagram. It also provides us thermodynamic information for different oxidation states of same element. By thermodynamic information means which is stable, which is more stable, which is less stable, कौन सी oxidation state ज़्यादा stable है, कौन सी कम stable है, ये सब इन सब चीजों की नॉलेज भी हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा से मिलती है. So diagrammatic representation of potential data can be done in the three forms. So far, scientists have proposed three methods how we can represent the potential data diagrammatically. So first one was by the scientist named Latimer. So those are called as Latimer diagrams. Second option is the Frost diagrams, again by the scientist Frost. Third one is the four-back diagram. So first one is the Latimer diagram. In this video, we'll be discussing about the Latimer diagrams. This is the simplest method for the diagrammatic representation of the redox potential data for the half reactions corresponding to the compounds of an element in its different oxidation states. डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जब एक ही कंपाउंड प्रेजेंट है तो उनके हाफ सेल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं लेटिमर डायग्राम. अब लेटिमर डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. यहाँ पे वो रूल्स लिखे हैं बट उससे पहले लेट मी शो यू हाउ द redox data looks like and how the Latimer diagrams look like. So this is the redox data for iron. Here iron has been uh, shown in different oxidation states. Iron has been shown in different oxidation states. Here it is iron plus 2. It is gaining 2 electrons. It is getting converted to iron solid. इसके लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? आयरन 3 जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? आयरन 3 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? और फेरेट आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe3 में कन्वर्ट होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? अब हमारे पास ये 4 सेपरेट रिएक्शंस है एक ही स्पीशीज के लिए आयरन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को उनके इंटर कन्वर्जन को हमें बताती है. बट अगर इन चारों रिएक्शन को हमें एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हो एक ऐसे तरीके से कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी कन्वर्जन किसमें कौन सी स्पीशीज किसमें कन्वर्ट हो रही है और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देयर वी नीड आर diagrammatic representation of potential data. So first one is Latimer diagram. So here is the Latimer diagram corresponding to this redox data. Latimer diagrams में होता क्या है? चारों स्पीशीज हम लिखेंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में. ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 में, यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0. तो जितनी भी स्पीशीज इस रिडॉक्स डेटा में अवेलेबल है आयरन की वो सारी हमने लिख ली. लिखने की सीक्वेंस में फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. अब उन सारों को आपस में कनेक्ट करना है वाया डबल पॉइंटिंग एरो, जैसे कि ये एरो लगाए हुए हैं बीच में. उसके बाद हर स्पीशीज के ऊपर उसमें पर्टिकुलर कंपाउंड की जिसकी हम बात करें पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है. जैसे कि यहाँ पे लिख रखी है FeO4 2 नेगेटिव के exactly above we have to write 6 in Roman, here 3, here 2, here 0. and जो interconnecting double pointing arrow है उसके ऊपर what will write the oxidation electrode potential, standard electrode potential, that means reduction potential will write here for the interconversion of these species. That means 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब इस स्पीशीज से इस स्पीशीज में कन्वर्ट करना है उसके लिए रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? फॉर iron 3 to iron 2 redox potential is 0.77 as per this reaction. Here is the reaction. So iron 2 से iron 0 में जब कन्वर्ट होता है तो उसके लिए क्या है?
और अगर दो एंटिटीज इस तरह से सेपरेटेड हैं कि उनके बीच में एक एंटिटी लाई करती है, तो उसको हम इस तरह से कनेक्ट करके थ्रू this way of line we can connect that thing and connect those two species, and we can write the electrode potential value there. So this is how Latimer diagrams are representing the redox data. So here are the rules. Let us have a reading of the rules. So here first rule is highest oxidation state is written on the left and lowest is on the right. So here goes the sequence from high to low as we did for iron, from +6 to 0. Also the species like H2O, H positive, OH negative, or electrons which are there in the half reactions, those are avoided while denoting the Latimer diagrams. Also, the numerical value of standard potential is written over the horizontal line with double pointing arrow connecting the two species. And oxidation number are written over the species. So oxidation numbers are written over the species. Oxidation reduction potentials, the standard electrode potentials are written over the connecting line arrows, and they are written in the sequence from high to low oxidation numbers. So this is how Latimer diagrams are represented. Now let us discuss the things what we get to know from the Latimer diagrams. Latimer diagrams हमें क्या information provide करते हैं? यहाँ पे सेम लेटिमर डायग्राम हमने ली है आयरन के केस के लिए जो हमने अभी डिस्कस करी थी. फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है लेटिमर डायग्राम से, दैट इज लेटिमर डायग्राम्स प्रिडिक्ट द रिडॉक्स बिहेवियर ऑफ स्पीशीज इन हाफ रिएक्शन. हमें क्या पता चलता है? रिडॉक्स बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का. रिडॉक्स बिहेवियर मीन्स किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में दैट पर्टिकुलर एंटिटी it will behave it as a better oxidizing agent, or it can behave as a better reducing agent. हम किसी स्पीशीज को कैसे यूज करें, उसका रिडॉक्स बिहेवियर कैसा होगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो चीज हमें पता चलती है लेटिमर डायग्राम से. कैसे पता चलती है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस लेटिमर डायग्राम को, तो दी हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल बिटवीन फेरेट एंड Fe3, इन दोनों के बीच में हाई पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज +2.2 volts. दिस इंडिकेट्स दैट high reduction potential is there for the conversion of this to this. That means it can act as a very good oxidizing agent. यहाँ पे क्या डिपिक्ट हो रहा है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इन दोनों स्पीशीज को कनेक्ट करता है इस एरो के ऊपर, दैट वैल्यू इज वेरी हाई. तो ये हाई वैल्यू इंडिकेट करता है कि इसकी इस Fe3 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. दैट मीन्स इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जिस स्पीशीज की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, जितनी ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है लेटिमर डायग्राम से कि हम उसका रिडॉक्स बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और नेगेटिव वैल्यू जब रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, दैट मीन्स उसकी कम टेंडेंसी है. जैसे कि यहाँ पे है आयरन 2 से आयरन 0 में अगर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या है? वैल्यू नेगेटिव है. दैट मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. दैट मीन्स इसकी आयरन 2 से आयरन 0 में जाने की टेंडेंसी बहुत कम है. दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव लेटिमर डायग्राम से हम क्या पता कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे अगर आप केयरफुली देखो तो हमने वो स्टेप मिस किया है जहाँ पे आयरन 3 से आयरन 0 में एक कन्वर्ट करने के लिए हमें रिडॉक्स डेटा दिया था, वो हमने यहाँ से इस एरो से रिप्रेजेंट किया है वैल्यू उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दैट इज 0.0 -0.057 volts. जो हमें iron 3 is gaining 3 electrons and is getting converted to iron 0. So अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्ट करने की ट्राई करें, डायरेक्टली देखें, तो हम ये हमारे माइंड में आ सकता है कि हम इन दो वैल्यूज को ऐड कर दें, और इन दो वैल्यूज को ऐड करके विल गेट द रिडॉक्स पोटेंशियल फॉर दिस स्पीशीज. अगर हम इन दो पोटेंशियल्स को ऐड करें, यहाँ से हमने वो 3 स्पीशीज यहाँ पे लिखी है आयरन 3 से आयरन तक, यहाँ पे इन दो पोटेंशियल्स को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 0.77 minus 0.47, इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.3 वोल्ट. तो हम ये हमारे माइंड में आएगा कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी 0.3 वोल्ट. बट एक्चुअली जो हमने एरो पे रिप्रेजेंट किया है या हमने रिएक्शन के साथ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा था, दैट इज -0.047 वोल्ट। तो ये क्या चीज है, ये क्यों डिफरेंट है? ये इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक एडिटिव वैल्यू नहीं है हाफ रिएक्शंस के लिए। हाफ रिएक्शंस में क्या होता है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते जब हम हाफ रिएक्शंस लिखते हैं। तो नंबर, जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो उसमें हम हाफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं लिखे जाते। तो जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग एक्सचेंज अलग है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ऐड करना है तो हमें कंप्लीट बैलेंस इक्वेशंस की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टर्म है वो एडिटिव नहीं है हाफ रिएक्शन के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें डेल्टा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना गिवन है, आयरन 3 से आयरन में कन्वर्ट हो, और हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। व्हाट विल डू, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यू यूज करके फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फ्री एनर्जी क्या टर्म है, उसमें क्या टर्म आती है, एन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्सचेंज। अब वो जो एन टर्म है, अब फ्री एनर्जी में ये कंसीडर कर लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट मीन्स फ्री एनर्जी इज एन एडिटिव टर्म। फ्री एनर्जीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस पर्टिकुलर इस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस कन्वर्जन के लिए फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इस कन्वर्जन के लिए फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो दोनों फ्री एनर्जीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल फ्री एनर्जी आ जाएगी। उस फ्री एनर्जी से फर्दर हम रिवर्स में फॉर्मूला यूज करके, जैसे कि हमने किया, फर्स्ट हमने इसको रिप्रेजेंट किया है डेल्टा G1 से इस कन्वर्जन के लिए, इसके लिए डेल्टा G2, और ओवरऑल हमारे पास आ गया डेल्टा G0, डेल्टा G03। दोनों को ऐड किया, वैल्यू हमारे पास आई 0.17 F, एंड वहां से हम E0 की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर कन्वर्जन, दैट इज फ्रॉम आयरन +3 टू आयरन 0, निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय NF। यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो ये हमारे पास आई वैल्यू -0.057 which was the actual value. So this is how we calculate for the alternate, or we can say the separated reduction potential, or we can standard electrode potential for the separated values in the Latimer diagrams. So here we have used the formula. इस formula को हम general term में भी use कर सकते हैं, generalize भी कर सकते हैं। generalize करने के लिए इसको क्या करेंगे हम, डेल्टा जी ओवरऑल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स भी इन्वॉल्व हो, तो हम इस फॉर्मूला को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ओवरऑल फाइंड करने के लिए डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 और डेल्टा Gn। तो अगर n नंबर, यहाँ पे तो 2 स्टेप्स की बात हो रही थी, अब अगर हम n नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें तो E0 would be equal to N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के या कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं ऐड हो जाएंगे। तो सिग्मा NiEi डिवाइडेड बाय सिग्मा Ni would be the formula which will give us the value of standard electrode potential for that particular step, which is separated by n number of steps. नेक्स्ट है हमारे पास टर्म डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है, इससे हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पता चलती है। अगर कोई एंटिटी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू दी टू एंटिटीज एट अ टाइम, दैट इज one will have the higher oxidation state and other will have the lower oxidation state. So ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें लेटिमर डायग्राम से मिलती है अबाउट दी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं, whether it is going to undergo disproportionation or not. Disproportionation होती क्या है, it is a process in which one oxidation state decomposes from forming some ions in the higher oxidation state and some in the lower oxidation state. In the Latimer diagram, अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की राइट पे जो एरो कनेक्टिंग लाइन है उस पे जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है उसकी वैल्यू हायर है इन कंपैरिजन टू दैट रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो जो स्पीशीज है दैट विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। जैसे कि ये एक लेटिमर डायग्राम है ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे है ऑक्सीजन इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे है इट इज इन द फॉर्म ऑफ H2O2, और यहाँ पे है H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2, इट इज गेटिंग डिक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सही है। एंड
एरोस के ऊपर हमने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। अब अगर राइट साइड पे जो है वैल्यू वो ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है और पॉजिटिव है, difference is positive, that means this minus this should be positive value. If it is a positive value, then that means हमारा जो ये entity है it will undergo disproportionation. तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है that as the reduction potential on the right of the H2O2 is greater than the reduction potential on the left of H2O2, so it will undergo disproportionation. So we can say it is thermodynamically unstable. डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं या सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन भी इसको बोलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास कॉपर के लिए, हमने यहाँ पे लेटिमर डायग्राम लिखा है, कॉपर 2, कॉपर 1 और कॉपर 0, हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें कॉपर 1 की अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी चेक करें, राइट साइड पे वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस कॉपर 1 इज नॉट स्टेबल, इट विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू कॉपर 1 एंड कॉपर 2। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है क्लोरीन के लिए, हमने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो डायग्राम है लेटिमर डायग्राम है स्लाइट कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी हमारे पास एंटिटीज हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लेटिमर डायग्राम से ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखी है, हर एरो के ऊपर हमारे पास रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है। तो अगर हम इसको केयरफुली चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ClO2 का अगर हम देखें फर्स्ट थिंग, यहाँ पे राइट साइड पे ज्यादा है ऑक्सीडेशन सॉरी रिडॉक्स पोटेंशियल, so that means ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाना चाहिए in these two species. Also Cl2 के लिए भी राइट साइड पे ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे कम है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसकी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जानी चाहिए, तो Cl नेगेटिव एंड OCl नेगेटिव। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, अगर हम ये लेटिमर डायग्राम्स की ये एक ड्रॉबैक है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में हमें कुछ चीजें छिपी रह जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप के लिए हमारे पास नहीं है, डायरेक्टली नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय द सेम मेथड, दैट इज सिग्मा ni ei डिवाइडेड बाय सिग्मा ni से कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से E नॉट की वैल्यू आ गई फॉर दिस कन्वर्जन और फॉर दिस कन्वर्जन। अब एक्चुअल में होता क्या है, OCl नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेट होता है इसमें और इसमें, बिकॉज यहाँ पे भी हायर वैल्यू है इन कंपैरिजन टू दिस 0.5। तो एक्चुअल केस ये है, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं ऊपर, अकॉर्डिंग टू द लेटिमर डायग्राम्स ये भी होने चाहिए, बट एक्चुअल में ये नहीं होते। तो ये ड्रॉबैक है कि लेटिमर डायग्राम्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम के केस में हमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी अच्छे से, बहुत ही करेक्शन से या अच्छा करेक्ट डेटा प्रोवाइड नहीं करता अबाउट thermodynamic stability of different species in the complex system. Simple system पे it is applicable, but complex systems पे नहीं applicable है ये। अब ये एक practice question है यहाँ पे जो लिखा गया है, तो it is for chlorine again, यहाँ पे simple diagram है, Cl2 है सेंटर में, यहाँ पे oxidation states अगर आप देखेंगे क्लोरीन का, यहाँ पे oxidation state is +1, यहाँ पे it is +0, it is minus here, so it is getting decreased. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ClO नेगेटिव टू Cl। हमें इस स्टेप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इट विल बी कैलकुलेटेड द सेम वे जैसे हमने ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो ये यू कैन प्रैक्टिस एट होम, यू कैन पॉज दिस वीडियो हियर एंड यू कैन try to solve this reaction, try to solve this question, and you can put the answer in the comment section. So next, here is also a practice question. This is for H2O2. यहाँ पे हमें शो करना है कि H2O2 की डिस्प्रोपोर्शनेशन होएगी टू वाटर एंड O2। ये हमें पता चल रहा है कि H2O2 विल डिस्प्रोपोर्शनेट क्योंकि राइट साइड का पोटेंशियल ज्यादा है लेफ्ट साइड से, बट इसको हम लिखेंगे कैसे, ये चीज जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये तो एक रूल हो गया जो हमने सिंपली याद कर लिया, बट डिस्प्रोपोर्शनेशन हमें दिखानी है, तो कैसे करेंगे। दिस क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड लाइक, पहले हमें क्या, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा वो हम लिखेंगे, हमें बैलेंस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखनी है, देन विल राइट द बैलेंस हाफ रिएक्शन, देन we'll have to subtract the right hand side, that is of the reduction, subtract the left hand side from the right hand side,
एंड कैलकुलेट ई नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। पहले हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसका ई नॉट फाइंड आउट करेंगे। ई नॉट जब अगर पॉजिटिव आ जाता है हमारे पास, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए जो ई नॉट है वो अगर पॉजिटिव है, दैट मींस वो रिएक्शन फिजिबल है। हम फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? बेस्ड अपॉन द ई नॉट वैल्यू। हमें जस्ट करना क्या है, रिएक्शन लिखनी है डिस्प्रोपोर्शनेशन, उसके लिए ई नॉट फाइंड आउट करना है। ई नॉट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है देन दैट मींस द रिएक्शन इज फिजिबल, एंड अगर वो हमारे पास नेगेटिव है तो दैट मींस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो फर्दर ये दिस इज अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेटिमर डायग्राम मैंगनीज का दे रखा है, मैंगनीज दे रखा है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका लेटिमर डायग्राम है। हमें ई नॉट कैलकुलेट करना है फॉर दिस स्पीशीज, नॉट फ्रॉम हियर, एक्चुअली फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसके लिए हमें ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट इज ऑल्सो इजी, नंबर ऑफ स्टेप्स आर 3। तीनों के रिडॉक्स पोटेंशियल्स को कंसीडर करना है और हमें यहाँ से ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई कर सकते हैं, and if you have any doubts, if you have any queries, you can always ask me in the comments. I'll be happy to reply there and to solve your problems. So that is it for this video. In the next video we'll be learning about the next method for the diagrammatic representation, that is cross diagrams. And that is it for this video. Thank you so much.